أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. یہ سورہ یونس کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی. سورہ یونس یہ 11ویں پارے کے اندر میں ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر میں نازل ہوئی. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ساری صورت مکہ مکرمہ کے اندر میں نازل ہوئی تھی لیکن 2 یا 3 صورتیں مدینہ منورہ کے اندر میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں جتنی صورتیں جتنی آیتیں نازل ہوئی ان کا تعلق ایمان سے، توحید سے، رسالت سے، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے ہیں. 3 قسم کے مضامین مکہ مکرمہ کے اندر میں نازل ہوئے، چاہے صورت کی شکل میں ہو یا آیات کی شکل کے اندر میں ہو. اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، جس کو عام طور پر کتابوں کے اندر میں تفسیر کے اندر میں لکھا گیا ہے توحید، رسالت اور معاد. توحید کا معنی اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو ماننا. رسالت کا معنی اللہ نے جن لوگوں کو رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا ان کو ماننا، اور مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی آنے والی ہے جس کے اندر میں حساب کتاب وغیرہ ہے اس کو ماننا. 13 سالہ زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر میں گزاری، جتنا بھی قرآن پاک نازل ہوا
सिवाय नमाज के सारे अहकाम जो है मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुए। नमाज के अलावा तौहीद, रिसालत और आखिरत की बातें, ये 3 किस्म के मज़ामीन अल्लाह तबारक व तआला ने मक्की दौर के अंदर में नाजिल फरमाए। बहुत सी मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अगली कौमों के किस्सों को और अगली कौमों को जो ना मानने के ऊपर अल्लाह ने अज़ाब नाजिल फरमाया, उसके किस्से भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर में जो बयान किए, ये मक्की सूरतों के अंदर में बयान किए गए। मक्की सूरत का मतलब ये है कि हिजरत से पहले जो भी कुरान पाक नाजिल हुआ वो मक्की है, उसको मक्की सूरतें या मक्की आयतें कहते हैं। और हिजरत करने के बाद जो कुरान पाक नाजिल हुआ उसको मदनी कहते हैं। सूरत मदनी है, ये आयत मदनी है। ये वो आयतें और वो सूरतें हैं जो मदीना मुनव्वरा हिजरत करने के बाद नाजिल हुई। एक बात 20 के अंदर मैं ये बयान कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए भी आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर में 1 मरतबा हज किया और 3 मरतबा उम्रे किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाने के बाद जब हज करने के लिए आए या उम्रा करने के लिए आए, तब ये जो आयतें नाजिल हुई, ये आयतें मदनी कहलाएगी, इसलिए कि मदनी दौर के अंदर में नाजिल हुई। बाज़ मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि मक्का के अंदर में जो आयतें नाजिल हुई वो मक्की, मदीना के अंदर में जो आयतें नाजिल हुई वो मदनी। तो वो लोग यूँ कहेंगे कि उम्रा के ज़माने में या हज के ज़माने के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए और फिर ये जो कुरान पाक नाजिल हुआ उनके कौल के मुताबिक या उनकी बात के मुताबिक ये आयत या ये सूरत मक्की कहलाएगी। लेकिन आम तौर पर जमहूर मुफस्सिरीन का ये मसलक है कि हिजरत से पहले का जो कुरान पाक है वो मक्की कहलाता है और हिजरत के बाद वाला जो है वो मदनी कहलाता है। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने, जैसा कि उनकी किताब भी है तफसीर जलालैन, मशहूर किताब है, बड़े मदारिस के अंदर में अरबी छठी के अंदर में पढ़ाई जाती है, मिशकात शरीफ के दर्जे में पढ़ाई जाती है जलालैन। उसके 1 साल के बाद में तालिब इल्म जो है आलिम और फाजिल बन जाता है। इनके उस्ताद थे जलालुद्दीन महल्ली, ये उनके उस्ताद थे। इनके उस्ताद ने कुरान पाक की तफसीर लिखना शुरू किया सूरह कहफ से। सूरह कहफ से तफसीर लिखते लिखते सूरह नास तक पहुँचे और बाद में उनका इरादा था शुरू से तफसीर करने का, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद में उनके जो शागिर्द थे उनका नाम भी जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन सियूती। इस जलालुद्दीन सियूती ने शुरू से तफसीर करना शुरू किया अपने उस्ताद के तरीके के मुताबिक या अपने उस्ताद के तर्ज के मुताबिक। इस किताब का नाम जलालैन रखा गया, यानी 2 जलालुद्दीन ने ये तफसीर लिखी। जलालैन 2 जलाल को कहते हैं। तो आम तौर पर जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने और बहुत से दीगर उलमाए किराम ने भी लिखा है। तो एक बात मैं बताना चाहता था कि जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सी किस्में कर दी कुरान पाक की आयतों की और सूरतों की। मक्की, मदनी, हज़री, सफ़री, सफ़र की हालत में नाजिल हुई, हज़र के अंदर में नाजिल हुई, रात में नाजिल हुई, लैली, दिन में नाजिल हुई, नहारी। एक अजीब व गरीब किस्म जो उन्होंने लिखी है फ़िज़ाई, 4 आयतें इसके बारे में लिखा है कि ये फ़िज़ाई हैं, न ज़मीन पर उतरी न आसमान पर। जब मेराज की रात गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त फ़िज़ा के अंदर में 4 आयतें उतरी। ये हज़रत जलालुद्दीन
सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा हुआ है। तो मौलाना जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह का ये मसलक है कि हिजरत के बाद में जो आयतें सूरतें नाजिल हुई वो मदनी कहलाती है, हिजरत से पहले जो उतरी वो मक्की कहलाती है। इनमें से ये सूरह यूनुस का एक रुकू आपके सामने तिलावत किया गया। सूरत यूनुस मक्कीयतुन, सूरह यूनुस ये मक्की है। आप कुरान पाक की जब तिलावत करें और जहाँ पर सूरत शुरू होती हो वहाँ ये डिज़ाइन के अंदर में जो लिखा हुआ होता है उसको भी देख ले सिर्फ, तो उससे पता चल जाएगा। मक्कीयतुन लिखा है तो मतलब ये कि मक्का में नाजिल हुई, मदनीयतुन लिखा हुआ है तो ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसकी 109 आयतें हैं और 11 रुकू हैं, ये इसके अंदर में लिखा हुआ है। तरतीब के एतबार से ये 10वें नंबर की सूरत है और यहाँ 11वें पारे के अंदर में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा ये हरूफ मुक़त्ताआत कहलाते हैं। पहले पारे के अंदर में भी है अलिफ लाम मीम, और इसमें है सूरह यूसुफ की शुरू के अंदर में है, यहाँ पर भी है, और भी 8वें पारे में है अलिफ लाम मीम सात, अलिफ लाम रा, और दूसरी सूरतों में भी है हा मीम आइन सीन काफ, काफ हा या आइन सात, काफ नून ताहा, ये सूरतों के शुरू के अंदर में है। इनको हरूफ मुक़त्ताआत कहा जाता है। इसके बारे में उलमा और मुफस्सिरीन ने अलग अलग बातें लिखी हुई है। जमहूर का ये मसलक है और ये कौल है कि अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, इसकी मुराद को अल्लाह तबारक व तआला खूब जानते, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हुरूफ मुक़त्ताआत का माना और मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था, लेकिन इसका ताल्लुक़ न तो इबादत से था, न तो अकाइद से था, न आखिरत और मरने की बात से था। इसलिए ये जो राज की बातें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान में थी, अल्लाह ने अपने रसूल को बता दी, ज़रूरत नहीं थी उम्मत के लिए, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को नहीं बताया। इसके अलावा जमहूर मुफस्सिरीन का ये कहना है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की जो भी राज और भीत की बातें हैं अल्लाह के अलावा कोई जानता नहीं है। इस पर उलमाए किराम ने एक बात लिखी है कि ये चैलेंज है, हुरूफ मुक़त्ताआत ये चैलेंज है, अरबी जानने वालों के लिए ये चैलेंज है। आप जानते हैं कि अरबी ज़बान 28 हुरूफ से लिखी गई, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल, 28 हुरूफ से लिखी गई। पूरा कुरान पाक जो लिखा गया है उसके अंदर में 28 हुरूफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया और मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार जो अरबी ज़बान की फसाहत और बलागत व्यक्तित्वता को जो जानने वाले थे उनको चैलेंज फेंका। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने कहा नऊज़ु बिल्लाह, ये कुरान जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी उस्ताद के पास में जाते हैं पहाड़ों के अंदर और वो लिखा देते हैं और आकर के लोगों को सुनाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज फेंका कि अगर तुम ये समझते हो कि ये इंसानों का लिखा हुआ कलाम है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या उनके उस्ताद ने गढ़ लिया है, तो तुम भी अरबी ज़बान को जानने वाले हो, अरबी ज़बान को जानते हो, फसाहत और बलागत को जानते हो, ऐसा ही लिखो।
तो शुरू के अंदर में बड़ा चैलेंज था, इस जैसी किताब को लिखो। पूरे कुरान पाक का चैलेंज था, कोई लिख नहीं पाया। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज को हल्का किया, 10 सूरतें लिख करके लाओ। ऐसी वो भी नहीं ला पाए। फिर एक सूरत का ऐलान हुआ कि इस जैसी एक सूरत लिख करके लाओ, वो भी नहीं ला पाए। एक आयत का अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज किया कि इस जैसी एक आयत को लिख करके लाओ, नहीं लिख करके ला पाए। बाज़ अरबी जानने वालों ने अल-कारिअतु मल-कारिअतु वमा अदराका मल-कारिया ऐसी सूरत बनाई। अल-फीलु वमल-फीलु वमा अदराका मल-फीलु के अल-फील, फील यानी हाथी, अल-फीलु हाथी, मल-फीलु हाथी क्या है, वमा अदराका मल-फीलु तुमने क्या समझ रखा है कि हाथी क्या होता है। अल-फीलु लहु ज़नबुन कसीरु व खुर्तुमुन तवीलु कि उसकी दुम छोटी होती है और उसकी सूंड लंबी होती है। ऐसा लिख कर के काबतुल्लाह के पास में लटकाया कि देखो मैंने भी एक सूरत की तरह एक सूरत बनाई। तो मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार जो फसाहत और बलागत के जानने वाले थे, उन्होंने उसकी तरदीद की। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने कि इसके अंदर में कौन सी फसाहत है, कौन सी बलागत है, कौन सी हिकमत की बातें हैं, कौन सी रुमूज़ की बातें हैं, कौन सी असरार की बातें हैं, कौन सी भेदों की बातें हैं जो अल-कारियातु मल-कारियातु वमा अदराका मल-कारियातु के अंदर में पाई जाती है। वहाँ क़यामत का तज़किरा है अजीब व गरीब अंदाज के अंदर में। इस तरीके से लोग इसका मुकाबला नहीं कर सके। यहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर में भी कादियानी लोग, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, इनके मानने वालों ने भी इसका चैलेंज उठाया था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने भी वल आदियाति ज़बहन फल मूरियाति क़दहन के वज़न पर छोटी सी सूरत बनाई थी। वत्ताहिनातु तहनन वल आजिनातु अजनन वत्ताबिखातु तबखन वल आकिलातु अक़लन, छोटी सी सूरत बनाई थी। आटा पीसने वाली औरतें, आटा गूंदने वाली औरतें, आटा गूंद करके पकाने वाली औरतें, खाने वाली औरतें। तो इस पर भी लोगों ने कहा कि इसके अंदर में कौन सी फसाहत और बलागत पाई जाती है जो वल आदियात के अंदर में पाई जाती है। तो ये चैलेंज था पूरे कुरान पाक का जो 28 हुरूफ से बना हुआ है। हुरूफ मुक़त्तआत, ये चैलेंज है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि देखो 28 हुरूफ से लिखा गया कुरान आप जानते हो, समझते हो, उसका माना, उसका मतलब सब कुछ जानते हो, समझते हो। ये हुरूफ मुक़त्तआत 14 हुरूफ से लिखे गए हैं। कुरान की सूरतों के शुरू के अंदर में ये जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्तआत ये सिर्फ 14 हुरूफ से लिखे गए। पूरा कुरान पाक अरबी ज़बान लिखी गई है 28 हुरूफ में, और ये जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं वो लिखे गए हैं 14 हुरूफ अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किए। 14 हुरूफ के अलावा दूसरा कोई हर्फ इस्तेमाल नहीं किया। ये रहती दुनिया तक अरबी जानने वालों के लिए और फसाहत और बलागत के जानने वालों के लिए मुकाबला है कि अगर ये कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की उतारी हुई किताब नहीं है तो तुम अरबी जानते हो, और 14 हुरूफ से बनाए गए हुरूफ मुक़त्तआत, ये है इसका माना और इसका मतलब और इसका रुमूज़ वगैरह बतलाओ। आजिज़ है दुनिया के जानने वाले अरबी लोग कि इसका माना, मतलब, इसकी फसाहत और बलागत जान सकते नहीं है। मुख्तसर ये कि अलिफ लाम रा ये हुरूफ मुक़त्तआत में से हैं। अल्लाह तबारक व तआला की मुराद अल्लाह ही जानता है कि अलिफ लाम रा से मुराद क्या है। कुरान के शुरू के अंदर में जहाँ सूरह बकरा शुरू होती है वहाँ सूरह फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम है, ये भी हुरूफ मुक़त्तआत में से हैं।
बाज़ लोगों ने लिखा कि अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्राईल और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लतीफ़े के तौर पर लिखा कि ये कुरान पाक है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल के वास्ते से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्राईल और मीम से मुराद मोहम्मद। ये लतीफ़े के तौर पर है, वरना असल मुहक्किकीन मुफस्सिरीन का यही मसलक है कि इसका मान और मतलब अल्लाह के अलावा कोई जानता नहीं है। तिलका आयातुल किताबिल हकीम, हकीम का माना है हिकमत वाला, मजबूती वाला। किताब हकीम यानी मजबूत किताब। आयात, आयात ये आयतुन की जमा है, बहुवचन है आयतुन का। तिल का वो आयात यानी आयतें, निशानियाँ। किताब का माना किताब, हकीम यानी मजबूत। अलिफ लाम रा ये मजबूत किताब की आयतें हैं। आयत के बारे में उलमा ने लिखा है कि आयतुन निशानी को कहते हैं। कोई चीज़ बतलाने के लिए कोई निशान कर दिया जाए उसको भी आयतुन कहते हैं, और इसकी जमा आती है आयत। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला के वजूद पर, अल्लाह ताला की सिफ़ात पर, अल्लाह की कुदरत पर दलालत करने वाली आयतें, बतलाने वाली आयतें, दो किस्म की आयतें हैं। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की वजूद, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की कुदरत, सब कुछ जितनी भी अल्लाह की सिफ़ात हैं, इन तमाम को बताने वाली दो आयतें हैं। एक है आयत कुरानिया, आयत कुरानिया, कुरान पाक की जितनी भी आयतें हैं, सूरह अल-हम्द से लेकर के सूरह नास तक, या बिस्मिल्लाह की बा से लेकर के नास की सीन तक, ये अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर दलालत करने वाली, बताने वाली निशानियाँ हैं। और दूसरी आयत, आयत कौनिया है। कौन, कायनात, गैलेक्सी, ब्रह्मांड, ये जो अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है, ये कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला के वजूद पर और अल्लाह ताला की सिफ़ात पर, अल्लाह की कुदरत पर दलालत करने वाली है। शेख अब्दुल मजीद ज़नदानी यमनी दामत बरकातुहुम बड़े मुफस्सिर है, साइंसदान हैं, डॉक्टरों और इंजीनियरों के साथ मिलकर जामिया अज़हर कैरो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के उलमा और मशाइख और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के साथ उन्होंने पूरी दुनिया का दौरा किया, और कुरान पाक के अंदर में जिन जिन जगहों का तज़किरा हुआ है उनका उन्होंने मुआयना किया, वहाँ जाकर के उनको देखा, और जिन जिन चीज़ों का ताल्लुक़ साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह से था उसको भी रिसर्च किया। 11 जिल्दों के अंदर में उन्होंने तफसील लिखी हुई है इस दौर के मुताबिक, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के और ये बम और ये वो वगैरह के, मिसाइल वगैरह के मुतालिक 11 जिल्दों के अंदर में किताब लिखी है। इन्होंने जो लिखा उसमें से एक बात ये लिखी है कि ये मजर्रा शमसिया है, जिसको हम गुजराती के अंदर में सूरज मंडल कहते हैं। मजर्रा शमसिया, सूरज है, चाँद है, और ये मंगल, बुध, गुरु जो सितारों के नाम हैं। ये मजर्रा शमसिया जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कायनात को पैदा किया हुआ है, कायनात के मुकाबले में ये मजर्रा शमसिया ये ऐसा है जैसा कि बहुत बड़ा मैदान हो और उस मैदान के अंदर में एक प्याज का छिलका पड़ा हुआ हो, और मामूली हवा के झोंके की वजह से एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके चला जाता हो। ये मजर्रा शमसिया की हैसियत है अल्लाह तबारक व तआला की कायनात के मुकाबले के अंदर में। मजर्रा शमसिया यानी ये जो हमारा जो सूरज का, चाँद का, ज़मीन का ये जो निज़ाम है,
ये कायनात के मुकाबले के अंदर में अभी तक किसी को नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी कामयाब कायनात बनाई हुई है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अकान लिन्नासी आजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम अन अंदिरिन नासा व बश्शिरिल लदीना आमनु अन्न लहुम कदम सिद्किन इंद रब्बिहिम क़ालल काफिरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। इसका तर्जुमा है, अकान लिन्नासी आजबन, क्या लोगों के लिए ताज्जुब की बात हो गई, अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम, ये कि हमने उन्हीं में से एक आदमी की तरफ वही भेजी। अरबी जानने वाले अरब लोग थे, मक्का मुकर्रमा में ये सूरत नाजिल हुई। मिनहुम से मुराद मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार है। उनको ताज्जुब हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों नाजिल हुई वही, उनको क्यों अल्लाह ने रसूल बनाया। उनका मुतालबा ये था कि अगर कोई रसूल बनता तो फरिश्ता बनता, फरिश्ता होना चाहिए था। अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को रसूल बना करके भेजते तो हम उसके ऊपर में ईमान लाते। कुरान के अंदर में जगहों जगहों के ऊपर में तज़किरा किया है कि अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ज़मीन पर फरिश्ते बसते तो हम ज़मीन पर फरिश्ते को नबी बना करके भेजते। ज़मीन के ऊपर में इंसान बसते हैं तो इंसान की सतह और इंसान की लेवल के मुताबिक इंसान की फितरी चीज़ों को, इंसान की तकाज़ों और चीज़ों को समझने वाला इंसान, इसी को हमने रसूल बना करके भेजा। इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। इसके अलावा मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने और भी मुतालबे किए जो कुरान पाक में अलग अलग जगहों के अंदर में मौजूद है कि अगर कोई आसमान पर से कागज़ हमारे नाम का लिखा हुआ आता कि फ़लान बिन फ़लान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नबी हैं, तो उसके ऊपर में ईमान लिया, तो हम उसको पकड़ते, छूते, पढ़ते और उसके बाद में फिर ईमान लाते। ये भी उनका मुतालबा था। और मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार का एक मुतालबा ये था कि मक्का मुकर्रमा चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। आपने देखा हरम शरीफ भी, इसके अतराफ के अंदर में भी बड़े बड़े पहाड़ हैं। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार का ये मुतालबा था कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो अल्लाह से दुआ करो, दुआ मांगो कि ये पहाड़ हट जाए और यहाँ खेती बाड़ी लहलहाती खेती के लायक ज़मीन हो जाए और यहाँ पर पानी के चश्मे उभरने लगे, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अगर इनके मुतालबात अगर हम पूरे कर दे फिर भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। दूसरी बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अगली उम्मतों की तरह और अगले नबियों की तरह ये नहीं चाहते थे कि ईमान वाले बच जाए और जो ईमान लाने वाले नहीं हैं उनके ऊपर में अल्लाह का अजाब आए, जैसे अगली उम्मतों के अंदर में हुआ। लूत अलैहिस्सलाम के साथ, उनकी कौम के साथ, नूह अलैहिस्सलाम के साथ वगैरह नबी और उनके मानने वालों को बचा लिया, और जो नाफरमान थे, मुनकिरीन थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग अज़ाबों के ज़रिए से हलाक कर दिया। अल्लाह ताला चाहता तो ये भी हो सकता था इस उम्मत के अंदर या इस उम्मत के साथ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। हम नहीं चाहते कि इनके मुतालबात को हम पूरा करें। अगर इनके मुतालबात को और इनके तकाज़ों को, यानी मुशरिकीन और कुफ़ार के तकाज़ों को अगर हम पूरा करेंगे, फिर भी अगर वो लोग ईमान नहीं लाएंगे तो उसके बाद में हमारी बात उन पर साबित हो जाएगी। हमारी बात साबित हो जाएगी का मतलब अज़ाब की जो बात है वो साबित हो जाएगी और ये अज़ाब के हकदार और मुस्तहिक बन जाएंगे। हम नहीं चाहते कि उनको अज़ाब के अंदर में मुब्तला कर दिया जाए। दुनिया के अंदर में जो चाहे ईमान लावे, ना नहीं लाता अगर ईमान
تو आखिरत के अंदर में आज़ाब के अंदर में मुब्तला होगा। तो इस उम्मत के साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल में अल्लाह तबारक व तआला ने ये रहम करम का मामला फरमाया कि अगली उम्मतों की तरह इस उम्मत को अल्लाह ताला ने हलाक और बर्बाद नहीं किया। अकान लिन्नासि अजबन, क्या कोई ताज्जुब की बात हो गई, अन अवहैना इला रजुलिम मिनहुम, कि हमने उनकी तरफ, उनमें से एक आदमी की तरफ वही भेजी। वही के अंदर में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, अन अंदिरिन नासा, लोगों को डराओ, वबश्शिरिल लदीना आमनु, और ईमान लाने वालों को बशारत और खुशखबरी सुनाओ। नास कुरान पाक के अंदर में जहाँ कहीं भी नास का लफ्ज़ आया उससे मुराद दुनिया के लोग हैं, चाहे ईमान लाने वाले हैं या ईमान लाए हुए नहीं हैं, मुशरिकीन हो, कुफ़ार हो, यहूद हो, नसारा हो, कोई भी हो, ये नास कहलाता है। और वो अंदिरिन नास के बाद में वबश्शिरिल लदीना आमनु अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, खुशखबरी सुनाओ उन लोगों को जो ईमान लाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईमान वालों को बशारत और खुशखबरी और लोगों को डराना। तो लोगों से मुराद वो लोग हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। खुशखबरी सुना दो ईमान वालों को, अन्न लहुम कदम सिद्क़िन, कि उनके लिए उनके रब के पास, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास सच्चा मकाम है, ऊंचा दर्जा और ऊंचा मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला ही ईमान वालों के ईमान और उनके ईमान के मुताबिक दर्जे जो आखिरत के अंदर में अता फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कि क्या क्या बड़े बड़े इनामात से अल्लाह तबारक व तआला इन ईमान वालों को नवाजेगा। क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन, काफिरीन कहने लगे कि बेशक ये अलबत्ता खुला हुआ जादू है। ईमान वालों का मुकाबला चैलेंज के साथ भी नहीं कर सके। और मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ये चाहते थे कि कोई फरिश्ता नाजिल होता या उनके मुतालबा और तकाज़ों को वगैरह पूरा किया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कुछ माजिज़ात भी ज़ाहिर हुए, जैसे चाँद की तरफ उंगली से इशारा किया, दो टुकड़े हो गए। और बाकायदा रात के वक्त के अंदर में बहुत से लोगों ने देखा और फिर शक करने लगे कि हो सकता है कि मक्का वालों के ऊपर में नज़रबंदी कर दी हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए उनको नज़र आया हो कि चाँद के दो टुकड़े हो गए। बाहर वालों को पूछा कि फलानी काफ़िले जो है सफ़र के लिए गए हुए हैं, उनको पूछते हैं तो उन्होंने भी गवाही दी कि फलानी रात को हमने देखा कि चाँद के दो टुकड़े हो गए वगैरह। तो सारे माजिज़ात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, एक दूध का प्याला कई लोगों के लिए काफ़ी हो गया पीने के एतबार से, कंकरियों का बोलना वगैरह वगैरह जो आप सुनते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखकर काफिरीन और मुशरिकीन ने यही कहा कि इन्ना हाज़ा लसाहिरुम मुबीन, ये तो खुला हुआ जादूगर है। कुरान को जादू और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा गया, इसलिए कि ये चीज़ें जो है अक्ल के इस्तिवा से और अक्ल के मेयार से ऊपर की चीज़ें हैं। 5 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के बदन में रखी है, उससे इल्म हासिल होता है, और एक अक्ल है उससे इल्म हासिल होता है। ये 6 चीज़ें अपना काम बंद कर देती है, उसके बाद में काम शुरू होता है वही है इलाही का, यानी कुरान पाक का काम शुरू होता है अकल के बाद। कोई भी आदमी अगर अकल से समझना चाहे कुरान को, दीन को, ईमान को, इस्लाम को, अहकाम को नहीं समझ सकता, इसलिए कि अकल के बस की बात नहीं। जैसे हम और आप आँखों के ज़रिए से हमारे सामने की चीज़ देख सकते, दीवार के पीछे की चीज़ हम नहीं देख सकते। कानों से या करीब की आवाज़ को सुन सकते हैं, 1 किलोमीटर दूरी पर क्या हुआ, कौन बात करता, हम कानों से नहीं सुन सकते। इस तरीके से अक्ल का मेयार भी महदूद है, वो अक्ल जो है इसको समझ नहीं सकती, इसलिए कि वही इलाही शुरू होती है अक्ल के बाद।
इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आगे आयात कौनिया का तस्करा किया। मैंने जैसे शुरू के अंदर में बताया था कि अल्लाह की वजूद और इल्म वगैरह पर दलालत करने वाली चीज़ें दो हैं, आयत कुरानिया और आयत कौनिया। कुरान पाक की आयत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत कौनिया का तस्करा फरमाया है। एक आयत का तर्जुमा करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इन्ना रब्बकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों के अंदर में, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर बरकरार हुआ, युदब्बिरुल अम्र, हुक्म को अंजाम देता है, मा मिन शफीइन, कोई भी शफाअत करने वाला, सिफारिश करने वाला नहीं है, इल्ला मिन बादि इज़्नि, मगर उसके हुक्म के बाद। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, तुम्हारा पालने वाला, फ़अबुदूह, उसकी इबादत करो, अफला तज़क्करून, क्या तुम समझते नहीं हो, इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, उसी की तरफ तुम सबको वापस लौट कर के जाना है। इस आयत की तफसीर इंशाअल्लाह आइंदा कल अर्ज़ की जाएगी।